Hello everyone and welcome back to Easy English with Mano. Today in this lesson we are going to learn a very strict rule that you might have already learned in the school. Otherwise you have come to this video to just learn the format of writing a formal letter. Okay, so you know that in CBSE or NCERT there is a syllabus and the strict rule to write, especially when there is a special exam for any kind of things that you are going to attend. So here in this lesson, I'm going to be discussing with you a strict rule that is to be followed when you write a formal letter. Okay, so let's begin today's video with the format. Then after we'll just see some of the important topics to be written normally what are the different kinds of formal letters, and you might have already learned letter to a business person, or letter to the editor-in-chief of Times of India or the Hindu newspaper, okay, or letter to the municipal officer or someone who are in higher rank. So people who are in higher rank, and to them if you are writing something to inform or to seek their attention towards any kind of problems in our society or in our village, okay, or letter to any kind of problems. If you want to tell them, if you want to convey any kind of problems to their attention, then we will write these kinds of formal letters. Okay, so let's learn first what is the format first. Okay, first thing that you have to remember, there must be in the top left आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बनाया था, होप यू हैव वॉच्ड दैट. इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या था, ठीक है, उसमें भी सेम ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट बट थोड़ा बहुत चेंजेस एंड डिफरेंस है. टॉप लेफ्ट साइड में लिखना क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस. सो यू कैन टेक नोट्स टू योर नोटबुक. हियर मस्ट बी सेंडर्स एड्रेस. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, sender's address. Okay, and normally suppose that you are living in a place, normally your home address is more than it's a long address, means more than 3 to 4 lines. Okay, but what you want to remember based on CBSE writing rules, sender's address must not be more than 3 lines. 3 lines से ज़्यादा address होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये एक रूल है, आपको याद रखना है. सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लिख रहे हो आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपके एड्रेस लिखना होगा. ठीक है, तो वो 3 लाइन से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि व्हेन यू राइट a letter. Okay, so sender's address 3 lines, minimum 3 lines. Minimum means not more than 3 lines is required. Okay, fine, so that's what you have to remember. Okay, so the second one, that is date. One thing you have to remember, there must be a line. Okay, एक ब्लैंक लाइन छोड़ना जरूरी है. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक ब्लैंक लाइन होना है, एक लाइन स्पेस, उसके बाद डेट लिखना है. ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डेट, व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ, जस्ट इमेजिन दैट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. हियर टुडे इज 17th. ओके, आज का दिन है 17th अक्टूबर 2020. ठीक है, तो डेट कौन सा लिखनी होती है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन का डेट आपको मेंशन करना होता है. ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट, उसके लिए भी एक क्लियर फॉर्मेट प्लान करना होता है. ठीक है, सो हियर इज द फॉर्मेट. डेट फर्स्ट लिखा है 17th, देन मंथ नेम अक्टूबर, देन स्पेसिफाइड योर ईयर. ओके, सपोज दैट देयर आर मेनी अदर रूल्स टू राइट, लाइक 17th October 2020. okay? एंड ये जो फॉर्मेट सही रहेगा CBSE राइटिंग रूल के लिए, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. ठीक है, तो फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है आपको, दिस इज द वन. ओके, कीप इट इन योर माइंड. देन आफ्टर, जैसे मैंने आपको इधर बताया था, एक ब्लैंक लाइन छोड़ना है. ठीक है, एंड डेट के बाद क्या आएगा, आप किसके लिए लिख रहे हो, तो उसका एड्रेस इधर लिखना होता है. दैट इज कॉल्ड रिसीवर्स एड्रेस. receivers address.
Okay, can copy down to your notebook. Okay, receiver's address. Okay, एंड सेम रूल जो आपको पता चलना चाहिए कि रिसीवर्स की एड्रेस में नॉर्मली किसके लिए लिखे, जैसे इमेजिन करो हम इस लेक्चर में एक न्यूज़पेपर की एडिटर के लिए आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ द रोड और रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम के बारे में जो पूरा दुनिया को या अपना जगह पे जो लोग रहता है उन लोगों को बताने के लिए आप अपना न्यूज़पेपर के एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो एक लेटर आप पब्लिश करो, ठीक है, इसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपना फेमस न्यूज़पेपर में जो ये प्रॉब्लम कंसर्निंग बात आप बता दें, आप पब्लिश कर लो, ठीक है। तो इधर एक्चुअली रिसीवर के एड्रेस में आपको लिखना क्या है, अगर मान लीजिए एक न्यूज़पेपर की एडिटर को लिखना है तो आपको लिखना है रिसीवर के एड्रेस में सबसे पहले द एडिटर मीन्स उसका डिजाइनेशन, उसका जो पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए जिस कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, okay, here one example I have given, the editor, the Hindu, okay, and what is there next to write here? Yes, कौन सी प्लेस आप कहाँ रहते हो, कहाँ की जो न्यूज़पेपर एडिटर है, तो जैसे इमेजिन करो इधर here I have written अहमदाबाद, ठीक है, और उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है 380005 जो भी है, ठीक है, पिन कोड भी लिखे, ठीक है। तो ये एक्चुअली रिसीवर का एड्रेस है। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले उसका डिजाइनेशन मीन्स उसका पोस्ट या पोजीशन क्या है, हियर हमने लिखा है एडिटर, देन वो कौन सा पब्लिकेशन में है, द हिंदू, ठीक है, सो दैट सेकंड लाइन में, ठीक है, स्पेस नहीं जोड़ने का बीच बीच में, ठीक है, उसके बाद उसका जगह पिन कोड के साथ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, रिसीवर के एड्रेस में इतना सारा लिखना, ठीक है, समथिंग वेरी इजी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट माय चैनल नेम आल्सो इज इंग्लिश, ठीक है। ये सब चीज लर्न करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो आपको याद रखना होता है, सेंटेंस के एड्रेस पहले लिखना है, 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद 1 लाइन स्पेस रखना क्या है, देन आफ्टर डेट फॉर्मेट यही याद रखने का है, दिस इज द नॉर्मल, ऑन विच डे यू आर राइटिंग द लेटर दैट डे यू हैव टू बी केप्ट हियर, ओके, देन आफ्टर यू हैव टू कीप 1 लाइन स्पेस, देन आफ्टर रिसीवर के एड्रेस, रिसीवर के एड्रेस क्या है वो भी ऑलमोस्ट 3 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, देन आफ्टर I will teach you what is the format that have been followed for many years, okay। तो वो फॉर्मेट क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी लेटेस्ट CBSE रूल के हिसाब से क्या चेंज हुआ है उसके रिलेटेड भी हम थोड़ा अभी लर्न करेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट वन दैट यू हैव टू कीप हियर इज, अभी तक हमने क्या लर्न किया था, जो सेंड रिसीवर की एड्रेस, उसके बाद नॉर्मली क्या होगा, या normally there is subject of the letter, ठीक है, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या काम के लिए किस बात के लिए आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, so that's called subject of the letter, okay। Here you have to mention the main purpose of writing a letter, okay, and subject has to be written in 4 to 5 words, 4 to 6 words, maximum 4 to 6 वर्ड्स होगा उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बड़ा सा लंबा 2-3 लाइन नहीं लिखने का है। सब्जेक्ट मीन्स आप किसके लिए लिख रहे हो, जैसे कि रिगार्डिंग बैड कंडीशंस ऑफ रोड, रिगार्डिंग बैड कंडीशंस ऑफ रोड, ठीक है। एक एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं, याद रखना ये जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन में पूरा आना चाहिए, नीचे लाइन में ना आ जाए, दैट वो बात आप याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, 4-6 वर्ड से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक। इधर कितने वर्ड्स हो गया, 1 2 3 4
5 बस इतना हो गया, ठीक है। 6 वर्ड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ओके। एंड उसके बाद नॉर्मली क्या आता है, यू नो दैट व्हाट इज सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। तो सैल्यूटेशन लिखना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्यूटेशन, ठीक। एंड सैल्यूटेशन किस तरीके से होता है, डियर सर और डियर मैडम और रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक। तो आप इधर लिख के रख सकते हो आपकी नोटबुक में मॉडल। डियर का डी कैपिटल होना चाहिए एंड सर का एस कैपिटल, ठीक है। सो उसके बाद पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नहीं तो दूसरा डियर मैडम, एम कैपिटल, ठीक है, आफ्टर कॉम, ओके। अगर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम, वो भी एक एग्जाम्पल है, आप यूज कर सकते हो फॉर्मल लेटर में इन द प्लेस ऑफ सैल्यूटेशन, ओके। रिस्पेक्टेड सर और respected madam, okay, then after comma, okay. So salutation is normally followed in this style, okay. So you can just write down here. Okay, hope you understood as far I have discussed all these things, subject of the letter and salutation, okay. Now let's come to understand the next fact that is very important regarding body, what you are supposed to write in the letter. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सब्जेक्ट लिखता है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखता है, ठीक है। लेकिन अभी लेटेस्ट रूल के हिसाब से, सीबीएसई राइटिंग पैटर्न के हिसाब से एक नया रूल आया है, लेटेस्ट रूल, तो आप अब फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड फर्स्ट यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस वन, सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? इट वॉज जस्ट ऑपोजिट, पहले ऐसे थे, लेकिन अभी नया रूल के हिसाब से आप सबसे पहले सैल्यूटेशन, डियर सर और डियर मैडम लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन स्पेस छोड़ के जो प्रॉब्लम या कोई भी रिलेटेड आप क्या टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो लेटर, उसका सब्जेक्ट आपको इधर लिखना है, ठीक है। इधर सब्जेक्ट जो मैंने आपको क्या बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सब्जेक्ट should not exceed more than 6 words. तो इधर आपको खाली 3 वर्ड ही मिलेगी, ठीक है। समथिंग वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड क्लियर, ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। चलो, इतना तो आपको ये बात क्लियरली पता चल गया। एंड नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, देन मेन बॉडी एंड कंक्लूजन आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो सेंटेंस इधर आप सर आपके लिए लिख के दे देंगे, तो आप रट्टा याद ही कर लो, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मल लेटर में अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर एडिटर के लिए लिख रहे हो, तो ये जो इंट्रोडक्शन सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस जो लिखना होता है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, यू कैन मेमोराइज इट, ओके। एंड दैट इज व्हाट यू कैन जस्ट सी हियर। आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए, लेन करके आपकी नोटबुक में लिखे रखो, ठीक है। Through the column of your esteemed newspaper. I will give you the meaning what it is. To the column of your esteemed, esteemed newspaper, comma, उसके बाद I would like to draw the attention of I would like to draw the attention of
concerned authorities, concerned authorities. Hope it is clear to all of you. Okay, to draw the attention of concerned authorities towards, इधर आपको जो आप क्या काम के लिए लेटर लिख रहे हो इधर आपको लिखना है towards, क्या प्रॉब्लम है towards, इधर सर आपके लिए स्पेस लिख रहे हैं क्योंकि ये इतना जो एक फ्रेज है जो सेंटेंस है आपको याद रखना है, रटा, क्योंकि आप याद ही कर लो, क्योंकि ये जो एक बड़ा इम्प्रेशन आप दे सकेंगे जो टीचर के लिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस आपको मैंने इसलिए दिया है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मीनिंग है आपका एक फेमस न्यूज़पेपर के द्वारा मैं सबके लिए ये प्रॉब्लम के रिलेटेड अटेंशन पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है, दैट इज द मीनिंग। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of concerned authorities. Concerned authorities means अगर कोई भी प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको बताना है तो वो अथॉरिटी का अटेंशन में आना चाहिए जो प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाना है जो प्रॉब्लम, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स मीन्स प्रॉब्लम क्या, इधर आपको टॉपिक लिखना है, जो सब्जेक्ट हमने क्या लिखा है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, हियर वी कैन जस्ट राइट डाउन। ओके, उसके लिए थोड़ा और आप लिख सकते ग्लोबल वार्मिंग विच इज ड्रास्टिकली चेंजिंग एंड lots of problems happen to the human beings and animal beings के, तो इसके रिलेटेड आप सबसे पहला जो पैराग्राफ में ये जो इस सेंटेंस के साथ आपको पूरा का पूरा इंटेंशन, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर हैज टू बी मेंशन वेरी वेरी क्लियरली। ओके, okay, hope you understood this much, and the second paragraph में क्या लिखना होता है, and matter in brief के second paragraph में आपको लिखना होता है matter in brief, बस एक या दो पैराग्राफ के अंदर आप ये लिख सकते हो matter in brief, okay, so this much things you have to remember, and let's come to understand how you have to end the formal letter. And this is the way you have to end the formal letter, by a complimentary closing. Complimentary closing. What is complimentary closing? Means how you end the letter, how you end the formal letter. Okay? Complimentary closing, आप जैसे आप पूरा का पूरा बात आप clearly लिखा है डिटेल में 1 or 2 पैराग्राफ में, then after you have to write there thank you. First off, then after what you want to do, yours faithfully, और आपको लिख सकता है truly, एंड एक वर्ड आपने कई बार सुना होगा एंड आपने यूज भी किया होगा, दैट इज obediently. What is it? Obediently. Normally formal letter में आपने कई बार देखा होगा yours obediently, but letter to the editor में ये जो obediently word use नहीं किया जाता, it is a wrong usage के, obediently use नहीं करना। आप ये लर्न करके प्रैक्टिस करके रखो, yours faithfully or yours truly, yours sincerely, can use this format very well. And what to write the last, अपना नाम, ठीक है, इधर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, इधर सर ने सर का नाम लिखा है
ठीक है. So here is the clear format of writing a letter, a formal letter, and type मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, letter to the chief editor of the Times of India or the Hindu. okay. तो इधर आपको इतना सारा चीज़ आपके जो राइटिंग स्टाइल में याद रखेगा तो you can very easily crack that part of writing section in your exam paper. Okay, so I wish you all the best and just remember this format and please do not make any small mistakes while you write. Okay, and एक चीज़ मैंने आपको बीच में बताया था, लेटेस्ट रूल के हिसाब से आपको जो सैल्यूटेशन स्टार्टिंग में रखो उसके बाद सब्जेक्ट लिखो. ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट पहले रखने के बाद लिखने के बाद डियर सर डियर मैडम मतलब सैल्यूटेशन फिर नीचे लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क कट होगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट लेटेस्ट रूल के हिसाब से मैंने आपको ये जो रूल चेंज हुआ है मैंने बताया. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर इन दिस लेसन एंड इफ यू रियली लाइक दिस today's lesson please don't forget to like, and if you want to get more videos related to all kinds of English that if you want to learn very easily, because I am not going to edit my videos to make something more perfect. okay, जो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा जो रियल होगा, रियल टू लाइफ. ठीक है, विदाउट मच एडिटिंग आई विल गिव यू द वीडियो एज इट इज because this is video for you. You are my students, you are whoever it is. Okay, can just simply watch the video and understand what the matter is being discussed here in each video. Okay, so if you understood and if you want to get more videos, then you can subscribe to the channel and press the bell icon so that you will not miss any latest updates whenever I upload a new video. Thank you for watching and thank you for showing interest in learning English with me.